ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں یہ بتایا تھا کہ کیسے پاکستانی جاسوس نے ہندو تخریب کاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب وہ ہندو تخریب کار سینٹر میں واپس آ گیا ہے اور اس نے ایک جھوٹی کہانی گڑھ کر ان لوگوں کو سنائی تھی کہ وہ لوگ پاکستانی رینجرز کے ہاتھوں بارڈر کراس کرتے وقت مارے گئے ہیں۔ اس کہانی پر ان لوگوں نے یقین کر دیا تھا۔ اس نے لکشمی دیال کو تمام کہانی سنا دی اور نمسکار کر کے اوپر کمرے میں آ گیا۔ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ مجھے ایک بار پھر پاکستان کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا موقع مل رہا ہے۔ افسوس اس بات کا تھا کہ میرے پاس دھماکہ خیز محلول کی شیشی نہیں تھی۔ اس دفعہ مجھے ان لوگوں کو دوسری طرح سے ہلاک کرنا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ایک تجربہ کار کمانڈو کے پاس اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے واسطے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ میں سگریٹ پیتا اور سوچتا رہا کہ اس بار تخریب کاروں کو اس طرح ہلاک کروں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اتنے میں انسٹرکٹر کالی داس آ گیا۔ وہ مجھے نئے مشن اور نئی پارٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے مجھے خاص طور پر کہا، مرلی پرساد، تمہارے پاس جو آدمی جا رہے ہیں یہ لوگ پیشہ ور سمگلر ہیں، تمہیں ان پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ پاکستان پہنچ کر ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اپنی نگرانی میں ان سے بم وغیرہ لگوانا۔ میں نے بڑی شان سے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، میں ان کی پوری نگرانی کروں گا اور ان پر کڑی نگاہ رکھوں گا، ہر ایک سے اس کی ڈیوٹی پوری کروا لوں گا۔ شاباش۔ کالی داس نے وہی چائے منگوا لی۔ ہم چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ کالی داس کہنے لگا، تم اس بار پہلے بم دھماکہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر کرو گے۔ ہم نے گوالا منڈی میں بم دھماکے کا پروگرام تبدیل کر دیا ہے، وہاں تم 2 دن بعد دھماکہ کرو گے۔ میں نے بڑی مصنوعی جوش کے ساتھ کہا، سر میں تو سب سے پہلے گوالا منڈی میں دھماکہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہیں میرے ماتا پتا جل کر مر گئے تھے۔ کالی داس نے میری بات ٹوک کر کہا، مر گئے تھے نہ کہو، سورگ باش ہو گئے تھے یہ کہا کرو۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اصل میں مسلمان تھا، اگرچہ میں نے ہندو کا روپ دھار رکھا تھا، مگر بولتے وقت ان لوگوں کو خاص موقع پر بولے جانے والے الفاظ میں بھول جاتا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، سوگ باش ہو گئے تھے۔ اس طرح اپنے نئے مشن پر گفتگو کرتے کرتے رات کے 11:30 بج گئے۔ نیچے سے ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ باہر سے 3 مہمان آ گئے ہیں۔ کالی داس بولا، جلدی سے نیچے جاؤ، کوئی خاص چیز ساتھ لے جانی ہے تو وہ بھی لے کر جاؤ، تمہیں یہیں سے امرتسر اٹارنی بارڈر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ نیچے لکشمی دیال کے کمرے میں 3 دیہاتی قسم کے آدمی بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں پرنام کیا۔ لکشمی دیال نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ مرلی پرساد یہ تمہارے پارٹی کے آدمی ہیں۔ پھر اس نے ان سب سے باری باری نام پوچھے۔ سب نے مجھے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ مرلی پرساد تمہارا، لکشمی دیال انہیں سمجھا دے گا، مرلی پرساد تمہارا نیا لیڈر ہوگا، تم اس کی ہر بات، اس کا ہر حکم ماننا ہوگا، جیسے یہ کہے گا ویسے تم کرو گے۔ تینوں آدمیوں نے سر ہلاتے ہوئے باری باری کہا، صاحب ہم ایسا ہی کریں گے جیسا ہمیں لیڈر بتائے گا۔ تینوں آدمی پکی عمر کے تھے اور چہرے پر مورے سے بڑے تجربہ کار اور بڑے چالاک لگ رہے تھے۔ ہم نے وہیں بیٹھ کر چائے پی۔ باہر کسی ٹرک کے قلعے کے احاطے میں آنے کی آواز سنائی دی اور پھر رکنے کی آواز آئی۔ کالی داس نے کہا، سر ٹرک آ گیا ہے، بھگوان کا نام لے کر چل پڑو۔ ہم باہر نکل آئے۔ لکشمی دیال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مرلی امرتسر کے قریب گاؤں میں جہاں یہ ٹرک تم لوگوں کو چھوڑ دے گا وہاں تمہیں ہمارا خاص آدمی ملے گا، اس کا نام ہربھجن سنگھ ہے، وہاں سے تمہارا پارٹی لیڈر ہربھجن سنگھ ہی ہوگا، وہی تمہیں بارڈر کراس کرائے گا، ذرا ہوشیار رہنا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا، سر میری طرف سے نشچت رہیے، یہ مشن بھگوان کی کرپا سے ہمارا سب سے کامیاب مشن ہونے والا ہے۔ لکشمی دیال نے میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، شاباش جاؤ اور ٹھہرو۔ اس نے بٹوے میں سے مجھے 100 روپے کا نوٹ نکال کر دیا، یہ اپنے پاس رکھو، ویسے ہی ہربھجن سنگھ کے پاس کافی رقم ہوگی، تمہیں جتنی ضرورت ہو اس سے لے لینا، اس سے میں نے خاص طور پر کلوا بھیجا ہے کہ وہ تمہارا خاص خیال رکھے گا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ 5 تخریب کاروں کو ہلاک کرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا، مجھے تو یہ بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ لوگ میری من گڑت کہانی کا اعتبار بھی کریں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف مجھ پر اعتبار کر لیا بلکہ مجھ سے زیادہ اعتماد میں لے لیا۔ بس میں یہی سے ہی مار کھا گیا۔ کیسے مار کھا گیا آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں کیا بتاؤں گا، آپ خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹرک عام سائزوں کے ٹرکوں جیسا ہی تھا، صرف اس کی باڈی اوپر سے بند تھی، دونوں سائڈوں پر کھڑکیاں بنی ہوئی تھی، اندر آمنے سامنے 2 بینچوں کی طرح سیٹیں بنی ہوئی تھی، سیٹوں پر تکیے پڑے ہوئے تھے، یہ ہمارے آرام کرنے کے واسطے تھے۔ ہم سوار ہو گئے اور ٹرک چل پڑا۔ تینوں آدمی آہستہ آہستہ میرے ساتھ گل مل گئے اور آپس میں بے تکلف بھی ہو گئے۔ ان کی طرف سے زیادہ بے تکلف کا اظہار ہوا تھا۔ یہ تینوں ہندو تھے۔ ان کے بیان کے مطابق بارڈر پر اسمگلنگ کا ان کا پیشہ تھا، مگر لکشمی دیال نے انہیں بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا، جس کی وجہ سے ہم پاکستان کے شہروں میں بم لگانے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام سکھ بھیر تھا کہنے لگا، مہاراج ہم نے آدھی رقم دلی میں ہی ان سے وصول کر لی ہے، کیا معلوم یہ بعد میں مکر جائے۔
मैंने लक्ष्मी दयाल की तरफदारी करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई शेख बेरा, यहाँ इस किस्म की बात नहीं होती। जितनी रकम बाकी है, जब तुम पाकिस्तान से अपना काम पूरा करके वापस लौटोगे तो तुम्हें उसी वक्त अदा कर दी जाएगी। दिल्ली से अमृतसर का सफर बहुत लंबा है। ट्रक जब जमुना का पुल पार करने लगा और शहर के मज़ाफ़ात से गुजरता हुआ जीटी रोड पर आया तो मैंने कहा, दोस्तों मुझे तो नींद आ रही है, मेरा ख्याल है तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। मैं सीट पर सरहाने पर सर रख कर लेट गया। एक आदमी सामने वाली बेंच पर लेट गया। बाकी दोनों बेंच के कोनों पर अपने आमने सामने बैठकर सिगरेट पीते और बातें करते रहे। ड्राइवर की साथ वाली सीट पर उसका जूनियर लड़का बैठा था। ट्रक का पिछला हिस्सा बंद था, ऊपर से खूब हवा अंदर आ रही थी। मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। रात के 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मुझे शेख बेर ने बताया कि रात के 4 बज गए हैं। हम लोग रात के पिछले पहर को भी रात ही कहते हैं, तावक्तिया सुबह न हो जाए। मैंने शेख बेर से पूछा, शेख बेरा हम कहाँ तक आगे हैं? वो बोला, बस जी मेरठ गुजर गया है, आगे मुजफ्फरनगर आएगा, फिर सहारनपुर और आगे अम्बाला। ट्रक मुजफ्फरनगर रुक गया, यहाँ उतरा और हमने लारी अड्डे की कैंटीन पर चाय पी। कुछ देर आराम किया। इसके बाद ट्रक जीटी रोड पर सहारनपुर की जानब रवाना हो गया। मुजफ्फरनगर में ही दिन निकल आया था, मगर नाश्ता हमने मुजफ्फरनगर से आगे एक छोटे से शहर देवबंद में किया। यहाँ से ट्रक रवाना हुआ तो दोपहर से थोड़ा पहले हम सहारनपुर पहुँच गए थे। सहारनपुर थोड़ी देर के लिए रुके। इसके बाद अम्बाला आ गया। मुझे पंजाब के DIG पुलिस की तोयफों की बीवी हरपाल की याद आ गई। अम्बाला से हम लुधियाने और फिर जलंधर पहुँच गए। यहाँ से अमृतसर 40 मील के करीब था। इस वक्त तक शाम हो चुकी थी। अमृतसर की सीढ़ियों वाले पुल के ट्रकों के अड्डे पर ट्रक खड़ा हो गया। यहाँ हमने खाना खाया। ट्रक का ड्राइवर हमारी खातिरदारी में लगा हुआ था। हमें अमृतसर के सरहदी गांव अटारनी पहुँचाने की उसकी ड्यूटी थी। वो हर स्टेशन पर जहाँ ट्रक रुकता हमें आकर पूछ लेता कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमारे नाश्ते, चाय, सिगरेट और खाने वगैरह का बिल भी वही अदा करता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हम ट्रक में सवार हो गए। ड्राइवर ने हमें बता दिया कि हम अटारनी बॉर्डर वाले गाँव में ही जाकर रुकेंगे। ट्रक की खिड़कियां बंद कर दो, यहाँ पाकिस्तानी जासूस भी होते हैं। ड्राइवर की हदायत पर हमने ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी। ट्रक में अंधेरा हो गया। जो ट्रक का आधा हिस्सा खुला था ड्राइवर ने उस पर तरपाल डाल दी। मैंने कहा, यार अंदर तो अंधेरा हो गया है। शेख बेर बोला, कोई बात नहीं भैया जी, अटारनी यहाँ से दूर नहीं, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर सारी खिड़कियाँ खोल देंगे। ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा था, जिसके बारे में उन सबको मालूम था। ट्रक एक तरफ घूम कर आगे चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रक एक चढ़ाई चढ़ रहा है। ये अमृतसर रेलवे पुल की चढ़ाई थी। यहाँ से ट्रक सीधा चलने लगा। हम अंधेरे में बैठे थे। ट्रक कोई 10-1 मिनट तक चलता रहा। उसने मोड़ काटा, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर चल पड़ा, मगर उसकी रफ्तार बड़ी आस्ते थी। फिर एक तरफ घूमकर रुक गया। ड्राइवर ने आकर पीछे दरवाजे पर पड़ी हुई तरपाल उतार दी और लोहे का कंडा उतार कर दरवाजे का आधा हिस्सा भी नीचे कर दिया। ट्रक में बाहर की रोशनी आ गई। ये रोशनी सामने लगे एक खंबे पर जलते बल्ब की थी। खंबे की रोशनी में मुझे 3 वर्दी पोश सिपाही जिन्होंने राइफलें उठा रखी थी ट्रक की तरफ तेज तेज चलते नजर आए। मेरे दिल ने फौरन कहा, दोस्त अब फंस के हो तुम। मेरी पार्टी के तीनों आदमियों ने छलांगे लगाकर ट्रक से उतर गए। मैं अभी तक अजीब उलझन में पड़ा बैठा था कि एक सिख वर्दी पोश सिपाही ने ट्रक के पास आकर कहा, जल्दी नीचे आओ तुम भी। मेरे पार्टी के आदमी हंस हंस कर सिपाहियों से बातें करने लगे। एक ने उनमें से किसी ने हवलदार को मुखातब करके कहा, पंचन सिंह संभालो अपने आदमी को। 3 सिपाही जिनमें हवलदार पंचन सिंह भी था ट्रक में आ गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींच कर नीचे कर लिया। 2 सिपाही राइफलें लेकर मेरे दाएं बाएं हो गए। मैंने कहा, तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हवलदार पंचन सिंह ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। वो गाली देकर कहा, तुम्हें पाकिस्तान ले जा रहे हैं। मुझे मेरी गफलत और बेसमझी की सजा मिल रही थी। इन लोगों ने बड़ी मकारी और अक्लमंदी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। तकरीब कारी ट्रेनिंग सेंटर का लक्ष्मी दयाल और कालीदास मुझसे ज्यादा चालाक और होशियार साबित हुए थे। मैंने उनके सामने जो कहानी घड़कर बयान की थी उससे वो समझ गए थे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ और पार्टी के आदमियों को मैंने ही हलाक किया है और यह कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। खुद मुझे अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बजाय उन्होंने बाकायदा स्कीम बनाकर मुझे अमृतसर जेल के हवाले कर दिया था, जहाँ से मेरा भागना इतना आसान नहीं था। जो हकायत मुझे बाद में मालूम हुए उनकी थोड़ी सी झलक में आपको बताता चलता हूँ। इंडिया के मशरकी पंजाब में 7 जेल खाने अपनी बर्बरियत और पाकिस्तानी शहरियों के साथ गैर इंसानी दरिंदों जैसा सलूक करने में सबसे
ज्यादा मशहूर है। इनमें नापका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, पटियाला और लुधियाना के जेल खाने हैं। इन जेल खानों में बड़ा जालिम अमला रखा जाता है। इन जेलों में जराइम पेशा कातिल और डाकुओं के साथ उन पाकिस्तानियों को भी कैद में रखा जाता है जिन्हें भारत में वीजे की मुद्दत गुजर जाने के बाद पकड़ लिया जाता है। या बॉर्डर पर कोई देहाती भूलकर इंडियन बॉर्डर वाले किसी खेत में दाखिल हो जाता है तो उसे भी पकड़कर उनमें से किसी जेल में डाल दिया जाता है। इन सब पर यही इल्जाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के जासूस हैं। आज भी इन जेलों में ऐसे कितने ही बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी तशद्दुद और कैद व बंद की उबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और इनका कोई परसान हाल या वाली वारिस नहीं। ऐसी भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनके कम्बों के साथ पकड़ लिया गया है। उन जेलों में पाकिस्तानी मासूम बच्चे भी अपनी माओं के साथ कैद हैं। इनको रोज मारा जाता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, बताओ भारत में और कितने पाकिस्तानी जासूस है। इन बेगुनाह पाकिस्तानियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, चुनाचे उन पर तशद्दुद किया जाता है और उनमें से कोई पाकिस्तानी तशद्दुद से हलाक हो जाता है तो उसे उसी जेल में गड़ा खोद कर वहीं दफना दिया जाता है। ये हकायक खास तौर पर पाकिस्तान के उन नौजवानों को बता रहा हूँ जो इंडिया की वीडियो फिल्म लेकर घर में बड़े शौक से देखते हैं और वो इन इंडियंस के फहश गाने भी सुनते हैं और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को खत लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम और आपकी फिल्में बड़ी पसंद आई। मेरा जी चाहता है कि मैं इन पाकिस्तानी बेगैरत नौजवानों को उन जेलों में ले जाकर दिखाऊं कि देखो, जिस भारत की तुम फिल्में देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती, उस भारत के लोगों ने तुम्हारे भाई बहनों के साथ दरिंदगी का सलूक किया है और किस तरह पाकिस्तान को दिन रात बुरा भला कहते हैं। हवलदार पंजन सिंह तो जब भी मेरी कोठरी के करीब से गुजरता मुझे गाली देकर जरूर कहता, बुलाओ अपने पाकिस्तानी को, कहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान। मुझे उस वक्त मालूम हो गया था कि ये अमृतसर की जेल है। इस जेल में पाकिस्तानी होने वालों जुल्म सितम की कहानियां मैंने दिल्ली मुंबई में सुन रखी थी। अब मैं खुद वहाँ जुल्म सितम सहने के लिए आ गया था। दो आदमी आए, मुझे घसीट कर एक कोठरी में ले आए और सलाखों वाले पिंजरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये अमृतसर की जेल है जिसकी 2 बैरकें थी। इन बैरकों में छोटी छोटी कितनी ही कोठरियां थी। ये कोठरियां कोई 10 फुट लंबी 11 फुट चौड़ी थी। इनमें 3-3, 4-4 कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता था। मैं चूंकि नया आया था और मुझसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होने वाला था, मुझे जुनूबी बैरक की कोठरी में अकेला रखा गया। मुझे कोठरी में पड़े बमुश्किल कुछ घंटे ही गुजरे होंगे कि मेरे पाँव में एक लोहे की बेड़िया डाल दी गई और इसी तरह जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ले जाया गया जिसके कमरे के बाहर SS लिखा हुआ था। अंदर जाकर देखा कि वो एक सिख था जिसकी आंखें लोमड़ी की आंखों से मुशाबहत रखती थी। उसने सिपाहियों को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया। 10-15 सेकंड तक घूरने के बाद कहने लगा, यहाँ भारत में और कौन कौन से पाकिस्तानी जासूस हैं? मैंने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इस सुपरिटेंडेंट का पूरा नाम सखूर रंदूज सिख दगल था। मैं इसे दगल सिंह ही कहूँगा। उसने एक सरदार साहब, इन लोगों को मेरे बारे में गलत रिपोर्ट मिली है। मैं देशभक्त हूँ इसलिए पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहा था। दगल सिंह इस दौरान टकटकी बांधे मुझे देखता रहा और कहने लगा, मगर तुम तो अपनी पार्टी के सारे आदमियों को मार डाला था, हिंदू होकर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, सर मैंने उन्हें नहीं मारा, बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर फोर्स से मुकाबला हो गया और मेरे साथी उसी ही फायरिंग से हलाक हो गए थे। लगता था कि मेरी बातों का दगल सिंह पर कोई असर नहीं हो रहा। उसने एक फाइल खोलकर सामने रख ली। मुझसे पूछा, तुम ब्राह्मण हिंदू हो? मेरा नाम मुरली प्रसाद है। दगल सिंह ने एक सिपाही को कहा कि इसकी पतलून उतारो। सिपाही ने फौरन ऑर्डर पर अमल करते हुए मेरी पतलून उतार दी। मेरे मुसलमान होने का हतमी सबूत उन्हें मिल गया था। दगल सिंह ने मुझे और पाकिस्तान को गाली देकर कहा, मेरा नाम दगल है, सखदूर दगल सिंह। मैंने पाकिस्तानी जासूसों को उसकी चाल से ही पहचान लेता हूँ। ले जाओ इसे, सुबह लेकर आओ, इसकी खबर लूंगा। देखता हूँ कैसे अपने साथी जासूसों का नाम नहीं बताता। मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ी थी। मेरा खेल खत्म हो गया था। अब शक शोबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। सिपाही मुझे खींचते हुए बाहर ले गए। बाहर ले जाकर उन्होंने मेरी मार कुटाई शुरू कर दी। वो मुझे लाते और घूंसे मार रहे थे और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। वो मुझे घसीटते हुए वहाँ से ले गए, कोठरी में बंद कर दिया। मैं सख्त जान कमांडो था, मगर इन लोगों ने मुझे कुछ इस तरह पीटा था कि मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। थोड़ी देर गुजरी कि हवलदार पंजन सिंह एक आदमी के साथ अंदर आ गया। उन्होंने आते ही मुझ पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश बरसा दी। मैं जवाब में उनकी गर्दनें तोड़ सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो मुझे वहीं शूट कर दिया जाता, फिर उन्हें हलाक करने का जवाब मिल जाता। मैं उनकी पिटाई सहता रहा और यही कहता रहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं बॉर्डर के गाँव आया था, गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गया और सोचा कि दिल्ली में भी सैर करता जाऊँ। और राष्ट्रीय सेवक साहब में तेरा बाप गया था, वहाँ क्या लेने गए थे? हवलदार पंजन सिंह ने ये कहकर फिर मेरी पिटाई शुरू कर दी। वो बेदर्दी से मुझे पीट रहा था जैसे उसका मैं असली दुश्मन।
اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کیونکہ بھارت کا ہندو اور سکھ پاکستان کے مسلمانوں کو اپنا اصلی دشمن سمجھتا ہے۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گیا تو دوسرے آدمی نے میری پٹائی شروع کر دی۔ اس وقت میں نے اپنے کمانڈو ٹریننگ سے کام لیتے ہوئے اپنے جسم کو سخت بنا لیا اور اپنے اوپر بے ہوشی طاری کر لی۔ میرا جسم بے ہو گیا تھا مگر پوری طرح سے ہوش میں تھا اور ان لوگوں کو نیم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ لوگ رک گئے۔ جو آدمی مجھے پیٹ رہا تھا اس نے کہا، حوالدار یہ تو مر گیا ہے۔ سکھ نے کہا، نہیں اوئے، اسے ابھی نہیں مرنا، اس سے دوسرے پاکستانی جاسوسوں کی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ انہوں نے میری نبض دیکھی اور پھر مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری رات میرا جسم جگہ جگہ سے درد کرتا رہا، جسم کی اذیت برداشت کرتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو مجھے کوٹھڑی سے نکال کر ایک دوسری کوٹھڑی میں پہنچا دیا گیا۔ اس کوٹھڑی میں چھت کے ساتھ 2 زنجیریں لٹک رہی تھی، دیوار کے ساتھ 2-3 سٹول پڑے تھے، ایک طرف لوہے کا شکنجا دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ مجھے فرش پر پھینک دیا گیا۔ ایک آدمی چھت کی زنجیر کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ اتنے میں دگل سنگھ 2 آدمیوں کے ساتھ اندر آ کر سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھی جاسوسوں کے نام بتا دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نہ صرف تمہیں چھوڑ دوں گا بلکہ بارڈر کراس کرا کر پاکستان بھجوا دوں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ تمہارے ساتھی کون کون ہیں اور بھارت کے کس کس شہر میں ہیں؟ میں نے درد کی ٹیسیں برداشت کرتے ہوئے کہا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔ دگل سنگھ نے اشارہ کیا۔ 2 آدمی آگے بڑھے، ایک نے میرے پاؤں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیے، دوسرے آدمی نے زنجیر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اوپر چرخی لگی ہوئی تھی، میں الٹا لٹک گیا۔ میرا سر فرش سے کوئی 5 فٹ اونچا تھا۔ باہر سے مٹی کا ایک پیالہ لایا گیا، میرے سر کے نیچے رکھ دیا گیا، اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں میری ناک اور منہ میں گھسنے لگا۔ یہ ہربل کا دھواں تھا۔ میں نے سانس کو روک لیا لیکن کب تک سانس کو روک سکتا تھا؟ سانس لیا تو سارا دھواں میرے پھیپھڑوں میں داخل ہو گیا۔ مجھے بے اختیار کھانسی آ گئی۔ میری زنجیر کو ایک آدمی نے بانس سے پکڑ رکھا تھا۔ دگل سنگھ کی آواز آئی، اب بتاؤ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں کہاں پر ہیں؟ ان کی نشاندہی کر تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ایک بار پھر میرے منہ اور ناک کے راستے پھیپھڑے میں بھر گیا اور میں بری طرح کھانسنے لگا۔ مجھے میرے انسٹرکٹر مرد مومن کمانڈر کمال شاہ کی یاد آنے لگی۔ انہوں نے ہمیں ہوشنگ آباد کے جنگل میں بڑی زبردست اور ہر قسم کی اذیت برداشت کرنے کی ٹریننگ دی تھی مگر مجھے دھونی نہیں دی تھی۔ مجھے اگر دھونی دی جاتی تو آج مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اگرچہ میں سخت جان تھا مگر آخر انسان تھا۔ جب تکلیف میری برداشت سے باہر ہوگی اور میری سانس رکنے لگا تو میں واقعی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو سٹول پر بیٹھا تھا۔ 2 آدمیوں نے مجھے بازو سے پکڑ رکھا۔ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے اور میرا سر لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ دگل سنگھ میرے سامنے سٹول پر بیٹھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے کہا، بتاؤ تمہارے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا، میں جاسوس نہیں ہوں۔ یقین کرے دھونی نے میرے جسم کی جیسے ساری طاقت چھین لی تھی۔ میرے سر کو شکنجے میں کسا جانے لگا۔ جب مجھے اپنی کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تو میں نے کہا، کیوں نہ ان لوگوں کے جھوٹ موٹ کے 2-4 مسلمانوں کے نام بتا دوں اور پتے بھی ان سب کو بتا دوں، خود ہی ڈھونڈتے پھریں گے، کم سے کم میری جان تو اس عذاب سے بچ جائے گی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس وقت شکنجا ڈھیلا ہو گیا۔ دگل سنگھ نے اشارہ کیا، میرے سر سے شکنجا اتار لیا گیا، مجھے پانی پلایا گیا۔ دگل سنگھ خوش ہو کر کہنے لگا، پہلے بتا دیتے تو کیا حرج تھا، بتاؤ کیا نام ہے تمہارے ساتھی جاسوسوں کے اور وہ کہاں کہاں پر ہے؟ پانی پینے کے بعد میری حالت کچھ سنبھل گئی۔ میں نے کہا، میرا صرف ایک ہی ساتھی جاسوس ہے، اس کا نام خدا بخش ہے، وہ ناگپور کے محلہ چاندنی والا کے مکان نمبر 15 میں رہتا ہے۔ ناگپور شہر کا نام میں نے اس لیے لیا تھا کہ یہ شہر وہاں سے بہت دور تھا، اس طرح بھی انہیں 2-4 دن لگ جانے تھے۔ دگل سنگھ نے فائل پہ نام لکھے اور پتے لکھے، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دہلی میں تم جس آدمی گل خان کے پاس رہتے تھے تم نے اس کا نام نہیں لیا، وہ بھی تو تمہارا ساتھی ہے۔ میں سنبھل گیا۔ گل خان پر شک پڑنا قدرتی بات تھی۔ ظاہر ہے گل خان نے ہی مجھے کانگریسی مسلمان رحیم بخش کے ذریعے تقریب کار ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر لکشمی دیال سے ملایا تھا اور اسی کی سفارش پر مجھے ہندو سمجھ کر بھرتی کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے گل خان کا پکڑا جانا یقینی بات تھی۔ کانگریسی مسلمان رحیم بخش نے تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی ہوگی کہ گل خان اسے میرے پاس لے کر آیا تھا۔ میرا اس جاسوس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا، نہ جانے ہمارے ماسٹر سپاہی گل خان پر کیا گزری ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور روپوش ہو گیا ہوگا۔ ایک اور بات مجھے مسلسل پریشان کی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو میرے سابقہ ریکارڈ کا علم نہیں ہوا، انہیں بالکل علم نہیں ہو سکا تھا کہ میں وہی کمانڈو ہوں جس نے بھوپال لائن پر اسلحہ سے بھری ہوئی فوجی گاڑی اور دوارکا کا فوجی اڈا اور گوالا بارود کا ذخیرہ اڑایا اور راجستھان کے ایٹمی سینٹر میں بھی میں نے ہی دھماکہ کیا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ لکشمی دیال نے مجھے دہلی پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے راتوں رات امرتسر جیل کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ مجھے بعد میں معلوم ہوئی اور وہ یہ تھی کہ دگل سنگھ لکشمی دیال کا دوست تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امرتسر جیل
में मुझे टार्चर करके उसे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूमात हासिल की जाए। अगर वो मुझे दिल्ली पुलिस के हवाले कर देता तो ऐन मुमकिन था कि मेरा साबका गुजरात का रिकॉर्ड भी पहुंच जाता और मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाता और इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों मेरा जिंदा बचना मुश्किल था। मैंने गुल खान के बारे में दगल सिंह सुपरिटेंडेंट अमृतसर जेल का सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मेरा साथी नहीं है। मैं उसके आगे अपने आप को हिंदू जाहिर करके उसके हाथ सिर्फ 2-4 दिन के लिए ठहरा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके कांग्रेसी मुसलमान के साथ ताल्लुकात हैं और उसकी सिफारिश से मैं राष्ट्रीय सेवक संघ में भर्ती हो सकता हूँ। दगल सिंह ने कहा, इस मामले की तफ्तीश बाद में होगी, पहले तुमने जो मुझे नाम बताया है उनकी तस्दीक हो जाए। याद रखो, अगर तुमने गलत नाम बता दिए तो तुम्हें इस कोठरी में ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं सर झुकाकर खामोश रहा। मुझे मेरी पहली वाली कोठरी में डाल दिया गया। मुझे खाने के लिए रोटी दी गई, उसके ऊपर दाल का फूचा फेर दिया गया था। मेरे साथ पाकिस्तानी जासूस कैदियों वाला बदतरीन सलूक ही होता रहा। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि मुझ पर तशद्दुद नहीं किया जाता था। नागपुर पुलिस को इन लोगों ने जरूर खबर कर दी होगी कि इस नाम का आदमी फलां मोहल्ले में जाकर पता किया जाए। अगर वो वहाँ हो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके अमृतसर जेल रवाना कर दिया जाए। यह भी हो सकता था कि अमृतसर पुलिस ने अपनी पुलिस पार्टी नागपुर रवाना कर दी हो। इस तरह मुझे कुछ आराम के दिन मिल गए। मुझे बदरूद चंद रेखा का ख्याल भी आया कि वो मुझसे इंतकाम ले रही है। अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो उस वक्त वो जरूर मेरी मदद करती, जिस तरह की वो पहले इस किस्म के हालात में मेरी मदद करती आ रही थी। मगर वो मुझे भारत में हिंदू बनकर रहने के लिए कह रही थी। इसकी शर्त ये थी कि मैं इंडियन मिलिट्री के असला खानों और गोला बारूद के जखीरों को तबाह न करूं। ये शर्त मैं कैसे मान सकता था? मेरा तो मिशन ही यही था। और फिर मैं सिर्फ 2 जखीरे उड़ा कर आया था, जिसका असला और गोला बारूद कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होना था। ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान का फर्ज था जिसे मैं अदा कर रहा था। मैं अपने मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता था। चुनाचे चंद्रिका की बदरूएं मेरी दुश्मन हो गई थी। मुझे मुगल शहजादे की रूह की पेशन गोई भी याद आ रही थी। उसने कहा था कि मुझ पर अलकरीब एक बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। खुदा जाने शायद वो यही आफत थी कि मैं भारतीय दरिंदों के काबू में आ गया था, जो मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे थे। मुझे तशद्दुद का खौफ नहीं था, अफसोस इस बात का था कि मेरे कमांडो मिशन की सरगर्मियां रुक गई थी। मैंने रात कोठरी के फर्श पर पड़े हुए वहाँ से फरार के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे जहन्नम से सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में निजात मिल सकती थी। मैं किसी तरीके से वहाँ से फरार हो जाऊं। अगर मैं किसी थाने के हवालात में होता तो वहाँ से फरार मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि थाने में अमला ज्यादा नहीं होता और फिर वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और एक दिलेर कमांडर को फरार होने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये जेल थी और बहुत बड़ी जेल थी, जिसमें अमले के अलावा मुसल्लह पुलिस की पूरी पलटने हर वक्त पैरों पर मौजूद रहती थी। दूसरा ये कि जेल की दीवार जिसने जेल को घेर रखा था कम से कम 4 मर्द ऊंची दीवार थी। एक तो वो कोठरी थी जिसमें मुझे बंद किया हुआ था, इसके आगे राहदारी थी, उसका दरवाजा भी सलाखों वाला था। इस तरह से मुझे पहले 2 सलाखों वाले दरवाजे में गुजरना था। इसके बाद जेल की ऊंची दीवार पर मुझे चढ़ना था। जेल के चारों कोनों पर ऊंची मचाने बनी हुई थी, जहां बंदूकों राइफलों लिए हिंदू सिख सिपाही दिन रात पहरे पर मौजूद रहते थे। रात के वक्त थोड़े थोड़े वक्फे के बाद सर्च लाइट की रोशनी दीवार के दोनों जानब डाली जाती थी कि कहीं कोई कैदी भागने या नकब लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जेल की दीवार के साथ अंदर की तरफ रात को गश्ती प्यारा भी होता था। अपने एक जेली जासूस का नाम और पता बता देने के बाद मेरे पाँव की बेड़ियां उतार दी गई थी और रात के साथ 8 बजे एक राइफल बरदार सिपाही मुझे 3-4 मिनट के लिए टहलाने के लिए बाहर भी ले जाता। मुझे बैरक के साथ ही टहलाया जाता। मैं जानता था कि यह रियायत चंद रोज के लिए है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने फर्जी आदमी का नाम बताया था तो मुझ पर दोबारा तशद्दुद हो जाएगा और मुझे बेड़ियां दोबारा पिला दी जाएगी। जेल सुपरिटेंडेंट दगल सिंह ने यकीनन अमृतसर से पुलिस पार्टी को नागपुर रवाना किया। शायद उसे नागपुर पुलिस पर एतबार नहीं था। इसकी वजह ये थी कि इस बात को 3 दिन गुजर गए और मुझ पर किसी किस्म की क़यामत न टूटी। इस दौरान मैं फरार की स्कीमों पर गौर करता रहा। बज़ाहिर इस जेल खाने से मुझे फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमृतसर की जेल में सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतजाम था। कोई भी कैदी लोहे के जंगले वाले 3 दरवाजे तोड़कर बड़े गेट तक नहीं पहुंच सकता था। बड़े गेट की दीवार के दरवाजे पर लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी और वहाँ हर वक्त गार्ड मौजूद रहते थे। मैं यहाँ कोई स्कीम बनाकर ही फरार हो सकता था और फरार की कोई स्कीम वहाँ मेरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब खुदा मेहरबान होता है तो गैब से आदमी की मदद का सामान मुहैया हो जाता है। एक रात क्या हुआ कि सिपाही मुझे गश्त करवा रहा था कि एक ट्रक जेल के गेट के साथ अंदर आया और सामने वाली जेल की बड़ी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसमें से एक ड्राइवर निकल कर इस तरफ चला गया जिधर जेल के तनूर वगैरह था। उस वक्त मैं कुछ फासले पर शिमाली बैरक के पीछे टहल रहा था और राइफल उठाए सिपाही मुझसे चल कदम दूर बड़ा होशियार होकर खड़ा मेरी तरफ देख रहा था।
ट्रक को मैंने बड़ी गौर से देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा जेल की दीवार के बिल्कुल साथ लगा हुआ था और उसके ऊपर दीवार सिर्फ चंद फुट ही ऊंची थी। जैसे बादलों में अचानक बिजली चमक जाती है, बिल्कुल इसी तरह एक ख्याल मेरे दिमाग में चमक उठा। मेरे दिल ने इस वक्त मुझसे कहा, निकल जाओ, इसके बाद तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। इस ख्याल के साथ ही मेरे अंदर की सारी तवानाई बेदार हो गई। मेरे बाजू के पट्टे तल गए और अब जान पर खेल जाने वाला कमांडो में बन गया था। ट्रक ड्राइवर जेल के किचन की तरफ गया था। वो किसी भी वक्त वापस आ सकता था। रात का वक्त था। जिस जगह ट्रक खड़ा था वहां तक दीवार के ऊपर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी बहुत कम आ रही थी। मैंने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ा और हाय की आवाज निकाल कर वही बैठ गया। मैं हाय हाय करने लगा। मैंने देख लिया कि बैरक के आसपास कोई आदमी नहीं है। सिपाही ने आवाज देकर पूछा कि ये गल ले और उठ जा। मैं वही लूट पुट होने लगा। सिपाही जल्दी से मेरे पास आकर मुझ पर झुका। बस मेरे लिए इतना ही काफी था। दूसरे लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू के आईनी शिकंजे में थी। एक झटके की बात थी और सिपाही की गर्दन लटक गई। मैं जेल की दीवार की तरफ दौड़ पड़ा और उसी जगह आकर बैठ गया जहां अंधेरा था। इतने में मचान पर लगी हुई सर्च लाइट की रोशनी गोल दायरे की एक तरफ से होते हुआ आया और मेरे ऊपर से होकर गुजर गया। रोशनी के इस दायरे को अभी दोबारा 1 मिनट के बाद वहां आना था। मैं उठकर ट्रक की तरफ दौड़ गया और पीछे से उसके ऊपर चढ़ गया। ट्रक की छत नहीं थी लेकिन उसकी एक तरफ साइड की लकड़ी दीवार जेल की तरफ से 1 फुट के फासले पर थी। मैं ट्रक की दीवार से ऊपर चढ़ गया। जेल की दीवार मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने उछलकर दोनों हाथों से जेल की दीवार को पकड़कर टांग को दीवार के ऊपर करके दूसरी टांग को भी ऊपर कर ली। ऊपर चढ़ते ही दूसरी तरफ देखा। नीचे अंधेरों में मुझे झाड़ियां नजर आई। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने आप को नीचे गिरा दिया। मैं झाड़ियों में गिरा और मेरे जिस्म में कांटे चुभे। मैं जल्दी से उठा और दीवार से हटकर जेल के दरवाजे की मुखालिफ सेबत दौड़ा। मैं अमृतसर शहर की गली कोचों और बाजारों से बचपन ही से वाकिफ था, मगर जिस तरफ अमृतसर जेल थी इस तरफ कभी ना आया था। हमारा गांव मैजेस्टर था जो अमृतसर के करीब ही वाक़या है और मैं बचपन में अपने माँ बाप के साथ फिर अपने गांव के स्कूल के लड़कों के साथ अक्सर अमृतसर आया करता था। मैं अभी 6 साल का ही था कि पाकिस्तान बन गया और हम हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। रास्ते में हम पर सिखों के जत्थों ने हमला किया और मेरी बहन शहीद हो गई। और मैं इन बाजारों से वाकिफ था लेकिन कमेटी बाग से आगे मैं कभी न गया था। और अमृतसर जेल खाना कमेटी बाग के शिमाल में जहाँ बिजली घर था उसके आगे जाकर आता था। ये सब कुछ इतनी जल्दी और आनन फानन हो गया कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जेल के दोज़ख से फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे कुदरत ने सारा इंतजाम पहले ही से कर रखा था। मैं सड़क पर आ गया। अब मैं दौड़ नहीं रहा था लेकिन कुदरती तौर पर मेरे कदम तेज तेज उठ रहे थे। रात का अंधेरा चारों तरफ था। कहीं कहीं सड़क पर बिजली के खंबे पर रोशनी नजर आ रही थी। मैं सड़क से हटकर खेतों के साथ साथ चल रहा था। मेरा रुख कमेटी बाग के दुराए की तरफ था। मेरे हिसाब से कम आधा घंटे तक मेरे फरार की किसी को खबर नहीं हो सकती क्योंकि सिपाही ने मुझे 5 मिनट टहलाने के बाद वापस कोठरी में बंद करना था। इसके बाद आधे घंटे बाद जमादार ने आकर कैदियों में दाल रोटी तकसीम करनी थी। मेरे पास मुश्किल आधा घंटा था। इस आधे घंटे के अंदर मुझे अमृतसर शहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। उसकी एक ही सूरत थी कि मैं कमेटी बाग से होकर मैजेस्ट रोड की तरफ पड़ जाऊं क्योंकि वो ऐसा इलाका था जिसको मैं रात के अंधेरों में भी पहचान सकता था। मुझे मैजेस्ट अपने गाँव से जुदा हुए 12 साल ही गुजरे थे और हमारे मुल्कों में इतनी जल्दी शहरों में तब्दीली नहीं आया करती। पुरानी चीजें अपनी जगहों पर जूं की तू मौजूद रहा करती है लेकिन मैं मैजेस्ट गाँव में रुकना नहीं चाहता था। ये पहले भी सिखों का गाँव था और अब भी वहाँ पाकिस्तान के इलाकों से आकर सिख आबाद हो गए हैं। मैं चाहता था कि मैजेस्ट गाँव के करीब से जो सड़क आगे जलंधर लुधियाना रेलवे लाइन की तरफ जाती है उस तरफ निकल जाऊं। मैं तेज तेज चलता रहा। कमेटी बाग वाले दुराए से गुजरकर कमेटी बाग में दाखिल हो गया। मेरा हुलिया भी बहुत खराब था। मैली जैकेट कमीज और मैली फटी पुरानी पतलून और पाँव में जूता था। मैं जूते की हालत खराब नहीं थी इसलिए चलने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अमृतसर जेल में मुझ पर काफी तशद्दुद हुआ था और काफी मारा पीटा गया था मगर मेरे जिस्म की तवानाई फिर से बहाल हो गई थी। ये फिक्र जरूर थी कि दोबारा न पकड़ा जाऊं। मैं अभी तक खतरे के मकाम से दूर नहीं हुआ था। आधे घंटे बाद जेल में अलार्म चीख उठेगा और पुलिस को इत्तला कर दी जाएगी। इन जेल वालों ने फौरन मेरे फोटो को भी उतरवा कर रख लिया था। पुलिस को मेरा फोटो दिखाकर मेरे पीछे लगा दिया जाएगा। हर थाने में फोन पर मेरे फरार की खबर दी जाएगी और पुलिस की पार्टियां मुख्तलिफ सिमत से निकलकर मुझे शहर के अंदर ही घेरे में लेने की कोशिश करेंगी। जेल या दुश्मन के कैदी कैंप से फरार होना मुश्किल नहीं होता। आदमी के अंदर दिलेरी और हिम्मत हो तो फरार का कोई न कोई सबब बन जाता है। आदमी फरार हो जाता है लेकिन असल काम फरार के बाद अपने आप को उस वक्त तक पुलिस के चंगल से बचाना होता है जब तक आदमी खतरे की सरहद से बाहर नहीं निकल जाता। फरार सभी हो जाते हैं मगर अपनी मंजिल तक फरार के बाद कोई ही पहुंचता है। मेरा भी यही हाल था। किस्मत ने साथ दिया था और कुदरत ने मेरे फरार का अज खुद सामान मुहैया कर दिया था और मैंने जुर्रत से काम लेते हुए अपने आप
آپ کو जेल की चार दीवारी से बाहर फेंक दिया था, मगर असल काम जो फरार से भी ज्यादा मुश्किल है और नाजुक था अब शुरू हो रहा था। जब मुझे इस इलाके से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचना था, मैं दिल्ली पहुंचकर अपने मास्टर सिपाही गुल खान और प्रोफेसर जमशेद के बारे में मालूम करना चाहता था कि उन पर मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या गुजरी और क्या वो दिल्ली में ही थे या वहाँ से किसी तरफ रुपोश हो गए थे। ये मालूम करना मेरा इखलाकी फर्ज भी था। बहुत मुमकिन था कि वो किसी अजियतनाक मुश्किल में हो और मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला खुद मेरी अपनी मदद करने का था। अपनी मदद आपसे मुराद यह है कि मुझे खुद किसी तरीके से अपने आप को अमृतसर की हदूद से बाहर, मुझे अमृतसर की इस हिंदू तवाइफ का भी ख्याल आया जिसके घर में घुसकर मैं छुप गया था, मगर मैं उस तरफ यानी अमृतसर की तवाइफों वाले बाजार राम बाग की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वहाँ हर वक्त पुलिस फिरती रहती थी, मैं जाते ही पकड़ा जा सकता था। मैजेस्ट भी कमेटी बाग से काफी दूर था, अलबत्ता मैजेस्ट रोड करीब थी। रात के 9 पौने 9 बजे का वक्त होगा कि सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका था और मार्च का महीना शुरू हो गया था। रात बड़ी खुशगवार थी और कमेटी बाग की फजा रात के अंधेरों में तरह तरह के फूलों की खुशबू से बसी हुई थी, मगर इस वक्त मेरा ध्यान फूलों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मैं नहर क्रॉस कर गया, आगे बाएं जानब हो गया। यहाँ काफी लोग जा रहे थे। चौक में पान की दुकान थी, यहाँ फिल्मी गाने बज रहे थे। मैं आराम आराम से चलने लगा। मैं वहीं से एक खाली सड़क पर हो गया। इस सड़क की दोनों जानब जामुन के गले दरख्त हुआ करते थे। मैंने दरख्तों को गौर से देखा। अंधेरे में मुझे ये जामुन के ही दरख्त लगे थे। इसका मतलब था कि मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। ये सड़क आगे जाकर मैदान में निकलती थी। इस मैदान को पार करके मैं हिंदुओं की एक मरघट के करीब से गुजर गया। इस मरघट को भी मैं पहचानता था। यहाँ बचपन में हिंदुओं के किसी मुर्दे को लाने के लिए, हिंदू किसी मुर्दे को किसी हलाके से लाने के लिए लाते तो हम एक तरफ खड़े होकर मुर्दे को जलता देखा करते थे। आगे सुखो दाल का एक छोटा सा गांव आता था। मुझे दूर से गांव की 2-3 बत्तियां जलती नजर आई। इस गांव की दूसरी तरफ जालंधर जाने वाली रेलवे लाइन थी। मुझे वहां जाना था। मैं रुके बगैर चलता गया। जिस तरफ मैं गांव में दाखिल हुआ वहां गांव का उकबी हिस्सा था जहां एक छप्पड़ यानी जोहर होता था। जोहर आज भी अंधेरे में मुझे नजर आ गया। मैं गाँव की तंगो तार गलियों में दाखिल होने के बजाय गाँव से बाहर से होकर आगे की तरफ चलने लगा। एक तरफ कोई जगह थी जहाँ लोग बैठे बातें कर रहे थे। फिर एक आदमी भगत की दास्तान सुनाने लगा। मैं गाँव के गंदे नाले की तरफ हो गया। इतने में अचानक पीछे मुझे ट्रक की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, बागीचे के बाहर खंबे पर बिजली का बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में एक ट्रक को रुकते देखा। ट्रक के रुकते ही उसमें से वर्दी पोश पुलिस के सिपाही छलांगे लगाकर उतरे और किसी ने बगीचे में बैठे लोगों को मुखातब करके ऊंची आवाज में कहा, खबरदार जहाँ हो वहीं बैठे रहो। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, पिंड की नाकाबंदी कर लो, भाग के जाओ। मैं एक बार तो सुनकर रह गया। फिर जल्दी से नाले के पुल से गुजरकर गांव के एक तंग गली में घुस गया। किसी सिपाही ने मुझे पीछे से आवाज दी, ठहर जाओ, तू कौन है? मैंने गली में बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। मेरे जेल से फरार होने का पता चल गया था और पुलिस ने मेरी तलाश में इस गाँव की नाकाबंदी कर ली थी और अब वो गाँव के घर घर की तलाशी लेने वाली थी और मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। गाँव की गलियां ज्यादा लंबी नहीं होती। मैं चंद कदम ही भागा था कि आगे दीवार आ गई। यह अंधेरे में मुझे दीवार लगी, मगर ये एक मकान था जिसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किसी आदमी की भजन गाने की आवाज आ रही थी। वो बगैर सांस के पढ़ने के अंदाज में गा रहा था। मैं हिंदुओं के भजन गाने और श्लोक पढ़ने के सारे तरीकों से वाकिफ था। मैं समझ गया कि ये किसी कट्टर हिंदू का घर है। रात के वक्त सोने से पहले भजन गा रहा है, मगर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस आधी गली तक आ गई थी। मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने दिल में सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं मकान में दाखिल हो गया। ख्याल आया कि कोई न कोई सीढ़ियां मकान की छत पर जाती होंगी। मैं छत पर चला जाऊंगा, वहाँ से दूसरी तरफ कूद कर रात के अंधेरे में भाग जाऊंगा। लेकिन दरवाजे के अंदर एक तंग डेवड़ी थी। डेवड़ी के आगे एक दरवाजा था जो बंद था। गाने की आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। इतने में मुझे पुलिस के आदमियों के कदमों की आवाज सुनाई दी। पुलिस मेरी तलाश में गली में आ गई थी। शायद किसी सिपाही ने मुझे गली में दौड़ कर दाखिल होते देख लिया था। मेरे पीछे भी मौत आ गई थी। आगे भी मौत थी और पीछे भी मौत थी। इसमें बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी। मैंने दरवाजे को धकेला, वो खुल गया। अंदर एक आदमी लालटेन के पास छोटी सी किताब लेकर बैठा भजन गा रहा था। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करके कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं हिंदू हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी है, भगवान के लिए मुझे बचा ले। उस आदमी ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर उठा, किताब बंद करके चरपाई पर रख दी और सबसे पहले दरवाजे को कुंडी लगाई। मुझे चरपाई के नीचे इशारा करके कहा, इसके नीचे छुप जाओ। मैं चरपाई के नीचे घुस गया। उस शख्स ने चरपाई पर पड़ी हुई चादर खींच
खींचकर इस तरह नीचे कर दी कि बाहर से कोई शख्स चारपाई को नीचे से ना देख सके। वो दोबारा चौकी लालटेन के आगे बैठकर भजन बजाने लगा। इतने में दरवाजा जोर से खटखटाया। उस शख्स ने पूछा, कौन है वो भाई? पुलिस बायरा। वो आदमी यकीनन हिंदू था, क्योंकि एक तो वो भजन गा रहा था, दूसरे उसके माथे पर तलंग लगा हुआ था, तीसरा इस गाँव में तकसीम के बाद किसी मुसलमान की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उठा, मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। मैंने सांस रोक लिया। दरवाजे पर पुलिस के सिपाही और उस आदमी के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो आपको सुनाता हूँ। सिपाही ने कहा, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया? एक पाकिस्तानी मुसलमान जासूस जेल से फरार हो गया है। पाकिस्तान का लफ्ज सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब ये हिंदू यकीनन पुलिस को बता देगा, क्योंकि मैंने उसके आगे अपने आप को हिंदू जाहिर किया था। मगर मैं हैरान रह गया कि उसने पुलिस कांस्टेबल से कहा, यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तुम मुझे पाकिस्तानी जासूस का हुलिया बता दो, अगर यहाँ आ गया तो मैं इसे पकड़कर थाने ले आऊंगा। पुलिस कांस्टेबल ने कहा, जवान आदमी है, मैली सी पतलून कमीज है, दाढ़ी मूछें नहीं है, ख्याल रखना हम गाँव की तलाशी ले रहे हैं। वो आदमी बोला, चिंता ना करें, यहाँ आया तो बचकर नहीं जा सकेगा। मुझे पुलिस कांस्टेबल के कदमों की वापस जाने की आवाज आई और दरवाजा बंद करके वो अंदर आने लगा। मैं चारपाई के नीचे हैरान पड़ा था कि ये किस किस्म का हिंदू है। उसने ये जानने के बावजूद कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पाकिस्तानी जासूस हूँ और मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि पुलिस के आगे झूठ बोलकर मुझे बचा लिया। इस आदमी ने चारपाई की चादर हटाकर नीचे झुक कर कहा, अभी नीचे ही लेटे रहो, कोई पता नहीं पुलिस फिर आ जाए। उसने चादर का पिल्लू नीचे कर दिया और चौकी पर बैठकर दोबारा भजन बजाने लगा। मैं चारपाई के नीचे लेटे लेटे आंखें बंद कर दी, दोनों हाथ सीने पर रख लिए और खुदा को याद करके शुक्रिया अदा करने लगा कि उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया। लेकिन इस भजन गाने वाले हिंदू की मुझे समझ नहीं आई। इसे ये मालूम होने के बावजूद कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझ पर पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगाया है, फिर भी मुझे क्यों उनके हवाले नहीं किया? यहाँ मेरी अकल जवाब देगी, क्योंकि ये आदमी मुझे पागल मालूम नहीं होता था। इस दौरान गली में पुलिस आ गई और आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगी। मालूम होता था कि पुलिस ने घरों की तलाशी शुरू कर दी है। वो आदमी भजन गाते गाते रुक गया। वो चारपाई के करीब आकर चौकी पर बैठा था। उसने आस्था से कहा, मेरे साथ ऊपर आओ, यहाँ तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा है, बाहर निकल आओ। मैं जल्दी से चारपाई के नीचे से निकल आया। उसने आस्था से कुंडी उतार कर दरवाजा खोला। आगे डेवड़ी में अंधेरा था। उसने मुझसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मेरे कंधे पर हाथ रख लो। डेवड़ी में इतना अंधेरा था कि कुछ नजर नहीं आता था। वो 3-4 कदम चलकर एक तरफ मुड़ गया। यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और मुझे आते हुए अंधेरों में नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 6-7 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर एक और कोठरी का दरवाजा था। उसने दरवाजा खोल दिया, कहने लगा, ठहरो मैं दिया जलाता हूँ। मैं सीढ़ियों के दरवाजे में ही खड़ा रहा। उसने दिया रोशन किया। छोटी सी कोठरी थी। एक तरफ ऊंचा सा पलंग था जिसके नीचे शायद चावलों या गलदम की भरी बोरियां रखी हुई थी। वो बोला, पलंग के नीचे इन बोरियों में छुप जाओ, भगवान ने चाहा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं जल्दी से पलंग के नीचे घुसकर बोरियों के पीछे छुप गया। ये देहाती टाइप का पलंग था जो ऊंचे होते हैं। इनके पाए फर्श पर बने हुए मिट्टी के 4 छोटी थरियों के ऊपर रखे हुए थे। मैं वहाँ लेटने के बजाय बैठ सकता था। उस आदमी ने वापस जाते हुए मिट्टी का दिया बुझा दिया और दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर सीढ़ियों से उतर गया। कोठरी में खास तौर पर पलंग के नीचे गर्मी और अबस थी, मगर इस वक्त मेरी जान पर बनी थी। इस कोठरी में शायद कोई खिड़की थी जो नीचे गली में खुलती थी। मुझे इस खिड़की में से नीचे गली में सिपाही और दूसरे मकान के लोगों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस मुकालों की तलाशी भी ले रही थी और उनसे मेरे बारे में पूछगछ भी कर रही थी और उन्हें हिदायत भी कर रही थी कि मफरूर पाकिस्तानी जासूस है, अगर वो कहीं नजर आए तो उसे फौरन पकड़ लेना और पुलिस को इतला दे देना। इस बार पुलिस के सिपाही इस हिंदू के मकान के बाहर आ गए जिसके मकान में मैंने पनाह ले रखी थी। किसी सिपाही ने, शायद हवलदार ने आवाज दी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने की आवाज आई। साथ ही मेरे बेसबाल हिंदू ने कहा, महाराज एक सिपाही पहले भी तलाशी ले गया है, ये कोई दूसरा सिपाही या हवलदार था। उसने कहा, महाराज मुझे मालूम है, क्या पता अभी पाकिस्तानी जासूस यहाँ घुस आया हो। मेरे मेजबान हिंदू ने कहा, महाराज अगर वो यहाँ आता तो मुझसे बच नहीं सकता था। मैं मकान में अकेला हूँ, भगवान का भक्त हूँ, आपने तलाशी लेनी है तो बेशक ले लें। कांस्टेबल या हवलदार ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मगर होशियार रहना, वो इसी गाँव में कहीं छुपा हुआ है, यहाँ गया तो उसे दबोच लेना, बेशक उसकी टांग वांग तोड़ देना। इसके बाद सिपाहियों की गली में से वापस जाने की आवाजें आई। वो वापसी में एक दूसरे से कह रहे थे कि जाएगा तो कहाँ जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। आवाजें दूर जाकर गायब हो गई। गली में रात का सन्नाटा छा गया। मैं पलंग के नीचे बोरियों के पीछे सिमट कर बैठा था। नीचे से एक बार फिर हिंदू मेजबान का भजन गाने की आवाज आना शुरू हो गई। मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने पलंग के
नीचे से निकलकर पलंग के ऊपर टांगे लटका कर बैठ गया और कोठरी के अंदर अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। मैं ये सोच रहा था कि इस नेक दिल हिंदू ने मुझे पुलिस से तो बचा लिया है, मगर अब यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं था। इतने में नीचे बजल गाने की आवाज बंद हो गई। मुझे किसी की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज आई। मैं जल्दी से पलंग के नीचे चला गया। दरवाजा खोला, ये मेरे मेजबान हिंदू ही था। उस आहिस्ता से कहा, पुलिस चली गई है, फिक्र न करो। फिर उसने दिया रोशन किया। कोठरी में दिए की मदद रोशनी फैल गई। बाहर आ जाओ। मैं पलंग के नीचे से निकल आया। अब मैं उस शख्स को दिए की रोशनी में गौर से देखने लगा। 60 के करीब उसकी उम्र होगी। जिस्म दुबला था, रंग गहरा गलदबी था, बाल सफेद हो रहे थे, माथे पर तलक लगा हुआ था। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे की एक अजीब किस्म की रहमदिली नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट कोई ऐसी मुस्कुराहट नहीं थी जो कोई लतीफा सुनकर या खुशी की खबर सुनकर चेहरे पर आ जाती है। ये बड़ी बेमालूम सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट से पहले और मुस्कुराने के बाद मुस्कुराहट मालूम होती है। मुझे कहने लगा, बेटा नीचे आ जाओ। उसके मुंह से बेटे का लफ्ज सुनकर मैं और भी हैरान हुआ। उसके दुश्मन मुल्क का जासूस था, पुलिस की हिरासत से भागा हुआ था। उस शख्स ने न सिर्फ ये कि मुझे पनाह दी, बल्कि पुलिस के आगे झूठ भी बोला, मुझे बचा लिया और अब बड़ी शफकत से साथ मुझे बेटा कहकर मुखातब किया। मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हिंदू देमाला और संस्कृत जबान का काफी मुताला किया था, बल्कि ये चीजें मेरी ट्रेनिंग का भी हिस्सा समझकर मुझे पढ़ाई गई थी, ताकि मैं दुश्मन की जैलियत को पूरी तरह समझ जाऊं और सही तरीके से सुराग रसानी की लड़ाई लड़ सकूं और दुश्मन की किसी महाज पर भी मार न खा सकूं। लेकिन इस हिंदू का सलूक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस शख्स का जवाल बेटा मर गया होगा और मेरी शक्ल इसके बेटे से मिलती होगी। वो मुझे नीचे इस कोठरी में ले गया जहाँ वो चौकी पर बैठा बजल गा रहा था। उस कोठरी में लालटेन रोशन थी। उसकी बत्ती उसने पुलिस जाने के बाद बंद कर दी थी। वो चौकी पर बैठ गया और बोला, तुम सो जाओ, सुबह चले जाना। इस वक्त जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मुझसे रहा लग गया। मैंने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके आगे झूठ बोला, मैं हिंदू नहीं हूँ। अब तो आपको पता चल गया है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं भी मानता हूँ कि मैं वाकई मुसलमान हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने ये सब कुछ जानने के बाद मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। मैं चुप हो गया, वो भी चुप था। चौकी पर आलती पालती मार कर बैठकर बिल्कुल सीधी करके बैठा हुआ था। उसके बूढ़े और हल्के तबस्सुम वाले चेहरे पर लालटेन की मदम रोशनी पड़ रही थी। मेरी तरफ उसने आंखें उठाई और मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल किया, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने बड़े अदब से कहा, इसलिए महाराज कि मैं आपके इस सलूक पर इतना हैरान हूँ कि शायद इतना हैरान मैं पहले कभी नहीं हुआ। मुझे एक हिंदू से ऐसे सलूक की कभी उम्मीद नहीं थी। उस शख्स के चेहरे के बेमालूम तबस्सुम पर जरा सा भी फर्क न पड़ा। उसने फिर एक सवाल कर दिया, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, महाराज कम से कम मेरी हैरानी जरूर दूर हो जाएगी। उसने फिर एक सवाल मुझे पूछ लिया, तुम्हारी हैरानी दूर होगी तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? इसकी ये बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, मैं आपका बड़ा दलदवारी हूँ, आपने मेरी खातिर अपने आप को खतरे में डालकर मुझे बचा लिया। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुसलमान होकर हिंदुओं वाली जुबान के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो? अब जब इस शख्स के आगे सारी बात खुल चुकी थी, इसलिए कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने जवाब दिया, महाराज हिंदू बनकर भारत में रह रहा हूँ, हिंदी बोलने की आदत पड़ गई है। वो शख्स एक लम्बे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही नर्म मुस्कुराहट थी। कहने लगा, कुछ खाओगे? मेरे पास एक वक्त गुड़ और रोटी है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्यास लगी थी। मैंने कहा, सिर्फ पानी पीऊंगा महाराज। उसने कोने में रखे मटके में से पानी मुझे निकाल कर दिया और मैंने पिया और कहने लगा, इस चरपाई पर नहीं, तुम ऊपर वाली कोठरी में पलंग पर जाकर सो जाओ। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं। वो अंधेरे में तुम्हें जगा दूंगा, उस वक्त चले जाना। पुलिस गाँव से जा चुकी होगी। मैं शख्स को हैरत और तशक्कर के मिले जुले जज्बात के साथ देखता रहा और ऊपर चला आया। कोठरी में दिया जल रहा था। मैं पलंग पर लेट गया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। न जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। लेट कर सोचने लगा कि इस शख्स का एहसान शायद मैं जिंदगी भर न भुला सकूंगा। खुदा जाने ये कोई इंसान था या खुदा ने मेरी मदद के लिए आसमान से कोई फरिश्ता उतार कर वहाँ बिठा दिया था। कितने ही दिनों से अमृतसर जेल की कोठरी की सख्त फर्श पर रातों के पहलू बदलता रहा था। अब पलंग पर लेटा तो नींद आना शुरू हो गई। ये इत्मीनान भी था कि मुझे कोई पकड़ने नहीं आएगा। मैं सो गया। वो अंधेरे मुझे इस शख्स ने जगा दिया। वो बड़े आराम से मेरा कंधा हिला रहा था। इससे आगे क्या हुआ? क्या उस शख्स ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया या वो शख्स इतना रहम दिल था कि उसने उसे उस बस्ती से निकलने में मदद की? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।